यूजिंग द इंटरनेट, आपका कोई इंटरनेट प्रोवाइडर है जिसका सर्वर है, तो आप सर्वर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो भैया जितनी भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना क्रैक वर्जन, उन सब में सिक्योरिटी का इशू होता है। ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अपने पास एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लें और एक दफ़ा एंटीवायरस रन कर लें आफ्टर डाउनलोडिंग इट। मुझे नहीं ख्याल कि कोई भी क्रैक वर्जन विदाउट एनी सिक्योरिटी इशू इजीली डाउनलोडेबल होता है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। मैं दोबारा से आप लोगों को लिंक शेयर कर रही हूँ। कल अगर किसी के पास नहीं था तो वो उस चीज़ को भी अटेंड कर ले, और उसके बाद फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। Excuse me, can I ask a question? जी बिल्कुल, यू कैन आस्क। Assalamu alaikum. Basically, it's not a question, but it's my humble suggestion and request. Sometimes when we are going to teaching, you are an incredible teacher. But suppose if we are going to teach education, so we are not directing going towards how to structure a test or what is the main concepts of curriculum, etc. This is quite the difficult, the arduous term. So the first thing, this is my request to you that like the first thing with a very simple definition, what is this thing, and then you have to click towards that thing. Like yesterday, you have given us a task. I was astonished of that task. Like it's not about the whole coverage of your syllabus. This is what how are we comprehending your own stuff. This is the main thing. Teaching is what maybe and not maybe. I'm sure you are such a nice teacher and you have abundant of knowledge. But the main thing is you have to look towards the researchers or the scholars or the general students. Okay, what's our cognitive level? Like we are going towards a very basic thing. Maybe that's quite the you can say very unnecessary, but this is what it looks to us very huge. So this is how it's my like we today I was just looking towards the text. Okay, please share recording, please share recording, and nobody was responding to those answers to those stuff. My suggestion is if you please start today with the brief introduction with some definition, with something like what is nominal, what is ordinal, etc., and then you have to move forward. Like for the your yesterday task was for the third week, not for the first week. How we suppose I don't know, maybe I missed that thing. If you structure the questionnaire, like I do not know how to structure the questionnaire if I am in MPhil, suppose, right? So this is how like you have to give us those tasks that you have to complete it already, right? So again, my humble request, and please do not mind it and this take it quite positive. So like in the Python, I didn't attend the class. Maybe it's my mistake. I didn't, I didn't give a very specific time to the classes, etc. But I was eagerly and immensely pleasure to learn something about the SPSS. But your speed, your pace is that is quite in No, I fast. think the point is very So clear. We are getting too long. yes, so this is my request. Please, if you consider it. जी जी बिल्कुल, आप लोगों को मैंने आपको पहले ही कहा स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता आपने ये चीज़ लिसन की या नहीं की। व्हेन आई स्टार्टेड द क्लास, मैंने यही चीज़ रिपीट की थी कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों का फीडबैक लिया था, एंड ऑल बहुत सारे लोगों का ये फीडबैक था कि दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक्स थिंग, और बेसिक्स थिंग से स्टार्ट की जाए। तो मैंने यही कहा था कि आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड आई एम एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कि एसपीएसएस होता क्या है, एंड हम एसपीएसएस क्यों कर रहे हैं, क्या हमें नीड पड़ी है। तो आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम द बेसिक। आई होप कि मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी सबको। Yeah, ma'am. I just mute all of them, so you can start your class, and at the mid, we can again unmute some of them to take their questions.
Sure. Thank you, Kasha. Asha, the first thing we are going to study about SPSS, but before studying about SPSS, we need to know why we are going to use the SPSS version. Okay, what is the need? Okay, basically, whenever we are doing any research, be it a biological research, be it the health research, be it the public health research, or be it any kind of research, social research, we collect data and we need to analyze it, right? So we have certain kind of tools that we use to analyze our data, to gain the meaningful interpretation of our data. For that purpose we use different kind of tools, and one of the tool that we commonly use, widely used, is SPSS. SPSS was initially uh, designed for social sciences task, or you can say to analyze the data that is collected in the social sciences. But later on, due to its widely acceptable tools, uh, it is also started used in biological and health sciences for data analysis to help, and it actually help researchers efficiently manage and interpret their data, to take out the meaningful interpretation of your data, what your data is saying. So who uses SPSS? Initially, as I told you right now, okay, initially they are all just designed for social sciences, but now it the various fields including biology, health science, psychology, epidemiology, uh, is- and moreover the finance, economics, different fields professionals use SPSS to analyze their data, whatever data they had from their research, or different scenarios, and to derive the meaningful insights from the research. But the main purpose to use SPSS is not just to analyze the data, but the main motive is to derive something meaningful insights from our research, to be able to biologically interpret our data in a correct way, right? To give the insights of our data in a very logical and meaningful way. So, why do we use SPSS? The first thing, it is a very straightforward point and click interface. Like there is no coding involved. So, if you are someone who don't like to code things, right? So, SPSS is a good thing that you have. You don't have to code. Every coding is done on the back end. Yeah, it is great for the beginners and the one who are looking to analyze it. Sorry, easily. ठीक है, SPSS provide us with basic to advanced data analysis that we will be studying later on in our course, and it is very good for the data visualizations. How we are going to visualize our data in the form of bars, different kind of graph, different kind of charts, pie charts, different kind of graphs, line graphs, bar graphs. So we can visualize our data using the soft SPSS. Why not Excel? Uh, I have a question to all of you. Uh, who knows the answer? Data visualizations के लिए uh, हमारे पास Excel है, MS Excel do all of these things, right? Excel में भी different basic statistical task हो जाते हैं easily. Microsoft Excel is good for the visualizations when we are doing the visualization part. But why we are not using Excel? Why is SPSS? Why SPSS? Is SPSS better than Excel? Can someone answer? Yes, SPSS is better than Excel. But why we are choosing SPSS over Microsoft Excel for visualizations?
um, no. You can perform ANOVA in Excel also, right? Uh, yeah. Uh, as I told you, SPSS provide us with basic plus advanced data analysis, and it's easy to use interface, give us good setup. So it is easy to use. ठीक है. Excel पे sets perform करना can be a little bit complicated sometimes. ठीक है. But on the other side, हमारे पास अगर सिर्फ basic to advanced analysis हमें करनी है, and we need to interpret more from our data. ठीक है. हम अपने डेटा की डिफरेंट इनसाइट्स से हम अपने डेटा को चेक करना है. लेट्स सपोज मेरे पास किसी पेशेंट का बहुत सारा डेटा मौजूद है. ठीक है. तो और मैं चाह रही हूँ कि मैं एक एंगल से अपने डेटा को नहीं एनालाइज करूँ, बल्कि मैं डिफरेंट बीइंग अ रिसर्चर. ठीक है. व्हेन वी आर बीइंग अ रिसर्चर, हमारे पास होता है कि हम अपने डेटा को डिफरेंट एंगल से एनालाइज करके दे सकें. हम इस डेटा का ये वाला एंगल भी एनालाइज कर सकें, हम इस डेटा का ये वाला एंगल भी एनालाइज कर सकें. ठीक है. हम अपने ही डेटा के कोई 4 to 5 पैरामीटर्स एनालाइज कर सकें, उनको आपस में रिलेशनशिप चेक कर सकें, उससे कुछ नई इंसाइट्स प्रिडिक्ट कर सकें. तो उसके लिए SPSS इज अ बेटर चॉइस. ठीक है. फॉर समवन जिसको एडवांस पे जाना है और कोडिंग नहीं करनी. ठीक है. या कोडिंग, बिकॉज कोडिंग कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट फॉर समवन फ्रॉम द बायोलॉजिकल एंड हेल्थ बैकग्राउंड. तो उसके लिए SPSS इज अ वेरी गुड चॉइस. ठीक है. SPSS में भी हमें उसी लेवल की डेटा विजुअलाइजेशंस मिल जाती हैं दैट वी कैन अचीव इन एक्सेल. There's another software, मैं एक रफली बता रही हूँ. We are not going to study about it in this course, but it is a very good software. If someone is from biological background in your in this student, हमारे पास ग्रुप में कोई biological background से है that deals with experimental data, तो there's another software that is very good and work good with biological experimental data with less number of samples, like 3 or 4 samples, and that is GraphPad Prism, to create the better visualizations. But if you are someone dealing with health, public health, health demographics, health की epidemiology से data collect कर रहे हैं, या हमारे पास we have a good sample size like 200, 300, 400, 500, तो it's very good कि आप जो है वो SPSS यूज करें. इट गिव अस अ गुड रिजल्ट. अच्छा. SPSS का मैंने हम लोग ने कल एक पढ़ा था, बट मैं आपको दोबारा बता सकूं. अगर हम SPSS यूज करने लगे तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टूल यूज करने से पहले टू नो अबाउट दैट टूल, कि भाई वो टूल है क्या, उस टूल में क्या क्या चीजें मौजूद हैं. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स दैट टूल हैव. तो SPSS जब भी हम ओपन करते हैं तो SPSS के हमारे पास दो व्यूज आते हैं. We have different interfaces in SPSS, right? डिफरेंट विंडोज ओपन होती है हमारे पास SPSS पे, और डिफरेंट विंडोज में डिफरेंट चीजें हमारे पास अपेयर हो रही होती. तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास अपेयर हो रही होती है दैट इज हमारे पास डेटा एडिटर शो हो रहा होता है. ठीक है. whenever we open our SPSS, ठीक है, मैं भी आपको हम प्रैक्टिस भी करेंगे, वी विल प्रैक्टिस टुगेदर. तो जब भी हम अपनी SPSS की फाइल खोलेंगे तो हमारे पास दो तरह की एक विंडो ओपन होती है दैट इज लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है. इस तरह नहीं लुक. हमारे पास जो डेटा एडिटर है, डेटा एडिटर विंडो है, इसके दो व्यूज होते हैं. द वन विद द वेरिएबल व्यू, जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की डिटेल्स मौजूद होती हैं. ठीक है. वेरिएबल व्यू में हमारे पास वेरिएबल की डिटेल्स मौजूद हो रही होंगी. आई डोंट नो इफ आई कुड राइट ऑन इट और नॉट. ठीक है. वेरिएबल व्यू हैव द डिटेल ऑफ आवर वेरिएबल. ठीक है. हमारे वेरिएबल की जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमारे वेरिएबल व्यू में शो हो रही होती है. द नेक्स्ट इज द डेटा एडिटर व्यू. ठीक है. जिसको हम डेटा व्यू कह रहे होते हैं. द डेटा व्यू में हमारे पास यहाँ पे आई डोंट नो
पिक्चर क्लियर है या नहीं? वेट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, आप लोग को ये रेड कलर का सर्कल दिख रहा है? This red color circle is basically, ठीक है, दिस इज अवर वेरिएबल व्यू, और यहाँ से हम अपने व्यूज स्विच कर सकते हैं फ्रॉम वेरिएबल टू डेटा व्यू। डेटा यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम डेटा व्यू पे चले जाएंगे। अगर मैं वेरिएबल्स का व्यू देखते हैं कि हमें वेरिएबल की डिटेल्स चेक करनी है तो हम वेरिएबल व्यू पे जाएंगे, एंड देन अगर हमें डेटा व्यू देंगे हम डेटा व्यू पे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अनदर वीडियो इज आउटपुट विंडो। आई होप सो शोइंग। ठीक है, आउटपुट विंडो इज समथिंग जहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी व्यूज हमारे पास हमारे आउटपुट विंडो पे शो हो रही होती है। ठीक है, जो भी चीज हम डेटा का एनालाइज करके जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं ना, दैट हैज वो हमें हमारे पास आउटपुट विंडो शो, आउटपुट फिल्टर है हमारे पास, आउटपुट वन करके या जो भी आपकी फाइल है उसमें हमारे पास आउटपुट विंडो शो हो रही होती है। ठीक है, देन अनदर विंडो जो आप खोल सकते हैं अपने पास विंडोज में जाके, इट इज कॉल्ड सिंटेक्स विंडो। सिंटेक्स इज बेसिकली आपको बैकएंड, ये काम आपको नहीं करना होता। मेरी स्क्रीन शेयर हो भी रही है, नहीं हो रही? नो मैम, शेयर नहीं हो रही। अच्छा, आई होप कि अब शो हो रही है। यस ठीक मैम, है, श्योर। अच्छा। अच्छा, एक और विंडो हमारे पास एसपीएसएस में खुलती है, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स विंडो, जहाँ पे हमारे पास बैकएंड पे जो भी आप एनालाइज कर रहे होते हैं डेटा, उसके बारे में डिटेल्स शो हो रही होती है। ये चीज़ें हमें एंटर नहीं करनी होती। ठीक है, ये चीज़ें हम एंटर नहीं कर रहे होते, ये चीज़ें बैकएंड पे सिस्टम आपके लिए कर रहा है। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम जब हम थोड़ा अच्छा सीख जाते हैं और हम इसमें हमें लगता है कि हम डायरेक्ट सिंटेक्स में जाके थोड़ी बहुत चेंजेस कर दें तो हमें दोबारा रीरन नहीं करना पड़ेगा एंटायर थिंग अगेन एंड अगेन। तो फिर हम इसमें कुछ चीज़ें अपने हिसाब से हम सिंटेक्स क्रिएट कर सकते हैं, और सिंटेक्स के थ्रू भी हम कोडिंग के थ्रू भी डिफरेंट प्रोग्राम्स लिख के भी हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एसपीएसएस पे कोडिंग नहीं कर सकते या एसपीएसएस पे एनालिसिस नहीं कर सकते, मतलब अपने प्रोग्राम्स डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जो बहुत एडवांस लेवल होता है उस एडवांस लेवल पे हम सिंटेक्स विंडो पे जाके अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, हमें इस पे कंपेयर करना है, इसको प्लॉट करना है, इसको स्टैटिस्टिक्स ये वाली लगानी है, ये चीज़ें ये पैरामीटर्स हमें देखने हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको टूल्स में अवेलेबल नहीं होती वो पर हम सिंटेक्स में जाके उसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज या कस्टमाइज कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है।
ठीक है, तो इसको लेके दिस इज समथिंग योर फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपके पास सिंटेक्स विंडो पे पीछे शो हो रहा होगा कि आपके पास क्या 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 काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अच्छा, अगर आप चेक कर सकते हैं, चारों विंडोज के थ्रू मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डेटा वेरिएबल व्यू हो गया, डेटा व्यू हो गया, सिंटेक्स विंडो हो गया, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट विंडो हो गई। हम चारों के साथ जो है वो अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं। और आप चेक करेंगे जो मेन्यू मेन्यू टूल या ये वाला जो बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर सारी विंडोज पे शो हो रहा है। ठीक, कॉमन एक जैसा हमारे पास सब पे शो हो रहा है। मतलब यहाँ से भी अगर मैं यहाँ से फाइल खोलूँ या मैं यहाँ से फाइल खोलूँ, ठीक है, इट विल गिव मी द सेम फाइल थिंग। तो ये मेन्यू, वी कैन एक्सेस द मेन्यू फ्रॉम एनी ऑफ द विंडो ऑफ आवर SPSS। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ आई होगी। ये चीजें मैं आपको SPSS खोल के एक दफा दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगी जब हम SPSS वाली एक्सरसाइज पे जाएंगे, बट आई होप कि यहाँ तक सबको समझ आ गई है। इज देयर एनीवन जिसको यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया हो? यू कैन रेज योर हैंड या आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दें। मैम ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर हमें डिफरेंट विंडोज पे नेविगेट करना है तो हम विंडोज का एक यहाँ पे होता है, इस पे क्लिक करके हम डिफरेंट विंडोज पे जा सकते हैं, कौन सी वाली विंडोज पे जाके काम करना है। बट बिफोर गोइंग टू द डेटा, या कुछ करने से पहले या डेटा को एनालाइज करने से पहले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने डेटा के बारे में पता होना चाहिए, राइट? अगर हमें अपने डेटा के बारे में नहीं पता होगा तो हम डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे? ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, विजय हैज अ क्वेश्चन। विजय, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दे एंड आई विल आंसर यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। Vijay, do you have any question? You can अच्छा जी, ask तो for me. वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैं मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अगर फॉर विंडोज को देखना चाहेंगे वो कैसे देखेंगे, हाउ टू सी द फॉर विंडोज? चारों विंडोज को एक साथ कैसे देखेंगे? जी मैम वो नहीं, हमारे पास चारों विंडोज एक साथ खुल जाती हैं और हम देख भी सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी जब मैं SPSS खोलूंगी तो आई विल टेल यू कि हम चारों विंडोज को एक साथ कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो SPSS में बहुत जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, और SPSS पे एनालिसिस करने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो द फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो हमारे पास इन द लैंग्वेज ऑफ SPSS या हम स्टेट्स की कॉन्टेक्स्ट पे बात करें तो वेरिएबल्स आर बेसिकली द डेटा पॉइंट्स। ठीक है, जो भी हमारा डेटा है उसको हम कह रहे हैं कि हमारा वेरिएबल है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं किसी पेशेंट का एज मालूम कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एज, पेशेंट का एज इज माय डेटा। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि एज मेरा एक वेरिएबल है। ठीक है, एंड देन अगर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट्स का डेटा है ऑफ डिजीज दैट हैव एज, उसका BMI है, तो एज इज वन वेरिएबल एंड द BMI इज अनदर वेरिएबल। ठीक है, हम SPSS में पेशेंट की जो ID लिखते हैं हम लोग, या हमारा पेशेंट का नंबर होता है, या हम कह सकते हैं हमारा जो केस का नंबर होता है, हम उसको भी पेशेंट की जो IDs होती हैं, पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, जो जो पैरामीटर्स हम चेक कर रहे हैं, दैट इज अवर वेरिएबल्स। ठीक है, जो भी डेटा पॉइंट्स हम एनालाइज करना चाहते हैं,
these are our variables. as easy लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो जितने भी कॉलम्स आपकी एसपीएसएस में या आपकी एक्सेल की फाइल में मौजूद होंगे, तो द कॉलम्स इन योर डेटा सेट आर द वेरिएबल्स, ठीक है, एंड दे एक्चुअली डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग अबाउट ईच केस या ईच रो। तो जो रो है, रो में आपके पास हर पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती जाएगी या हर केस की इंफॉर्मेशन होगी, या अगर आप किसी और पॉपुलेशन पे काम करो उस पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन होगी। बट जो कॉलम्स होंगे ना, तो हर कॉलम आपका एक वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे कॉलम 1 है तो कॉलम 1 विल बी रिप्रेजेंटिंग योर वेरिएबल 1, column 2 is representing your variable 2, column 3 is representing your variable 3, column 4 is representing your variable 4। ठीक है, तो हर कॉलम आपका एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है डेटा से आपके डेटा सेट का एसपीएसएस के अंदर, ठीक है। अच्छा, बट बिफोर गोइंग टू दिस थिंग, हम एक थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। मैंने आई एम गोइंग टू कॉपी पेस्ट दिस लिंक इन योर गूगल शीट ऑल्सो, ठीक है। मैं ये लिंक आपकी चैट में कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। दिस हैव अ प्रैक्टिस डेटा सेट फाइल, एक्सेल फाइल है ये, प्रैक्टिस डेटा सेट। तो इट विल टेक जस्ट 1 or 2 minutes ऑफ यू कि आप इसको डाउनलोड कर लें। और अगर आप में से किसी के पास जूम के थ्रू फाइल डाउनलोड हो जाती है, तो मैं चैट बॉक्स पे ये फाइल भी सेंड कर रही हूँ डायरेक्टली, ताकि अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर सके तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। शेयर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आई डोंट नॉट हैव एन एक्सेस टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो आकाशा, अगर आप इनको इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे वेयर दे आर, उस पर अगर शेयर कर सकते हो ये फाइल, तो आप शेयर कर दो, या मैं जैनब को शेयर कर दूँ। मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है। हैं? अच्छा, अगर ये इस पे एडिटिंग इनेबल नहीं हो रही होगी, तो आप इसको कॉपी करके किसी और एक्सेल शीट पे पेस्ट कर लीजिएगा। आई होप मेरी स्क्रीन शो हो रही है एक्सेल की। ठीक है, दिस इज योर डेटा, प्रैक्टिस डेटा है ये, ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स का डेटा है ये, ठीक है। तो द फर्स्ट कॉलम इज द पेशेंट आईडी, द सेकंड कॉलम इज जेंडर, द थर्ड इज स्मोकिंग स्टेटस, डिजीज स्टेटस, वट एवर डिजीज इसके पास होगी, जो भी डिजीज है इसको, लेट सपोज कि हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज स्टडी कर रहे हैं, एज, बीएमआई, और इसका ब्लड प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग जो हमने अभी करनी है, जिनके पास एसपीएसएस डाउनलोडेड है वो ये काम कर सकते हैं मेरे साथ साथ। आप अपने पास एसपीएसएस ओपन कर लें, मैंने आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन आप बात कर देती हूँ।
ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग अवर एसपीएसएस कि हम अपना डेटा एसपीएसएस में एंटर किस तरह करेंगे। ठीक है, डेटा को बाद में समझते हैं कि डेटा में हो क्या रहा है, पर उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डेटा को एसपीएसएस में एंटर किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, यूजुअली जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, हमारे पास एक्सेल की फॉर्मेट में डेटा मौजूद होता है यूजुअली। ठीक है, तो हम अपनी एक्सेल की फाइल को एसपीएसएस पे किस तरह इजीली अपलोड कर सकेंगे, वो हमने यहाँ पे ट्राई करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एसपीएसएस खोला है, माय एसपीएसएस इज लोडिंग राइट नाउ। अच्छा, मैंने आप लोग जब अपना एसपीएसएस ओपन करेंगे तो व्हाट आई यूजुअली डू कि मैं यहाँ पे सर्च पे जाके एसपीएसएस लिखती हूँ, मेरे पास एसपीएसएस का एप्लीकेशन मैच मिल जाती है मुझे, आईबीएम एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, तो या तो आप अपने पास कहीं इसको स्टार्ट पे या टास्क बार पे या कहीं पे भी जहाँ पे आपको इजीली एक्सेसिबल है वहाँ पे इसको पिन कर लें, ताकि आप यूज कर सकें इसको इजीली। ठीक है, जब एसपीएसएस खोलेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो खुलेगी। ठीक है, जिस पे इसका हेडिंग पे लिखा हुआ आ रहा होगा अनटाइटल्ड वन, डेटा सेट 0, आईबीएम एसपीएसएस। एंड हमारे पास मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके। Yes, ma'am, you are audible. अच्छा, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इफ माय वॉइस गॉट डिस्टॉर्टेड तो मुझे ना इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैम आपकी आवाज़ डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि दिस इज अ पीक रश आवर, तो कुछ इंटरनेट थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है इस टाइम पे। अच्छा, तो जब आप विंडो खोलेंगे तो लेट्स आई वाज सेइंग कि हमारे पास यहाँ पे विंडो का ऑप्शन होता है एट द टॉप। ठीक है, ठीक है, हमारे पास टॉप पे यहाँ पे विंडो का ऑप्शन है, यहाँ पे बस फाइल। अच्छा, अब हम इसको जरा विंडोज देख लेने पहले इसकी। हमारे पास विंडोज में स्टार्टिंग में फाइल का ऑप्शन है, देन वी हैव एडिट, व्यू, डेटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज, ग्राफ्स, यूटिलिटीज, एक्सटेंशंस, विंडोज एंड हेल्प। ठीक है, जब आप हेल्प चूज करेंगे तो आपको डिफरेंट फाइल्स मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, एसपीएसएस की चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, एसपीएस का सपोर्ट, फोरम, पीडीएफ के फॉर्मेट, कॉमन सिंटेक्स जो यूज होते हैं, डायग्नोस्टिक टूल, या अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो आप यहाँ से डायरेक्टली एसपीएसएस के जो बिल्ड इन मैनुअल्स होते हैं उनको वहां पे आप जा सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव द विंडोज। अब आप यहाँ पे विंडो पे जाओगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा गो टू डेजिग्नेटेड व्यूअर विंडो, और यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है गो टू डेजिग्नेटेड सिंटेक्स विंडो। टेल यू कि हमारे पास एक सिंटेक्स विंडो भी होता है। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मिनिमाइज ऑल विंडोज, और स्प्लिट का ऑप्शन भी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्यूअर विंडो। व्यूअर विंडो क्या है? ये वाली विंडो जो हमारे पास अभी खुली हुई, जहाँ पे हमें डेटा एंटर करना है, डेटा एडिटर विंडो है। ठीक है, और दूसरी सिंटेक्स विंडो, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे सिंटेक्स विंडो पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये सिंटेक्स विंडो खुल गई। अभी मैंने कोई एनालिसिस रन नहीं करी हुई, कुछ नहीं करा हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये रह गई मेरे पास एक विंडो ये सिंटेक्स की खुली हुई है, यहाँ पे मेरा डेटा एडिटर है। डेटा एडिटर विंडो में दो डिफरेंट शीट्स मौजूद हैं। ठीक है, डेटा एडिटर विंडो में दो शीट्स मौजूद हैं हमारे पास।
एक वेरिएबल व्यू है और दूसरा हमारा डेटा व्यू है। ठीक है, डेटा व्यू में जो भी हम डेटा एंटर करेंगे वो हमें यहाँ पे शो होगा, और वेरिएबल व्यू में हमने अपने वेरिएबल के बारे में उसको बताना है। कैसे बताना है ये हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक टाइम पे मुझसे पूछा था कि हम चारों विंडो खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। हम बिल्कुल खोल सकते हैं, मैं वो खोल के दिखा देती हूँ। एक विंडो मेरे पास ये डेटा व्यू वाली खुली हुई है, एक मेरे पास ये सिंटेक्स की खुली हुई है। अगर मैं आउटपुट करके कुछ एनालाइज करती तो मेरे पास यहाँ पे एक आउटपुट की विंडो भी खुली हुई होती। ठीक है, तो एक टाइम पे मेरे पास 3 विंडोज खुल जाती हैं, डेटा एडिटर विंडो, सिंटेक्स एडिटर विंडो, और द थर्ड वन इज आउटपुट विंडो। ठीक है, डेटा एडिटर विंडो के अंदर हमारे पास 2 शीट्स मौजूद होती हैं, दैट इज डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आप जाएंगे सबसे पहले काम फाइल के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास न्यू, ओपन, इंपोर्ट डेटा, डिफरेंट ऑप्शंस, एक्सपोर्ट। ठीक है, डेटा सेट का नाम हम अगर रीनेम करना चाहें, ठीक है, हमारे पास जो रिसेंटली यूज डेटा होता है वो हमारे पास सारा शो हो रहा होता है। जो भी हमने रिसेंटली यूज फाइल्स की भी होती हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने अब कल कोई काम किया था और बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पाकिस्तान में हम रहते हैं, ठीक है, हमारी लाइट चली जाती है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, लाइट चली गई या किसी वजह से हमारा लैपटॉप, इंटरनेट, लाइट चली गई, लैपटॉप बंद हो गया, चार्ज नहीं है, चार्जिंग खत्म हो गई। ठीक है, फिर हमने इसको दोबारा जब हम लैपटॉप स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से अपना जो रिसेंटली यूज डेटा है हम डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, जिस भी डेटा पे आप काम कर रहे हैं। ईजी वे, अगर आपको याद नहीं है कि आपका कहाँ सेव हुआ होगा, किधर सेव हुआ होगा, तो वो यहाँ पे भी हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, हमने अपना डेटा इंपोर्ट करना है। कोई भी चीज कहीं फॉरेन से मैं मंगवाऊंगी, एक्सेल फॉर एसपीएसएस इज अ फॉरेन टूल, तो किसी भी और टूल से मैं कोई चीज एसपीएसएस में मंगवाऊंगी तो मुझे उसको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, आप अपना डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टूल्स से अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि एक्सेल की फाइल है तो मैं एक्सेल का डेटा इंपोर्ट करूंगी यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सेल लिखा, आई विल जस्ट गो ऑन माई डेस्कटॉप। ठीक है, जहाँ भी आपका डेटा स्टोर है आप वहाँ पे जाएं। मेरे पास ये फाइल शो हो रही है और मैंने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास काफ़ी फाइल्स जब हम इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं कोई भी डेटा फाइल, तो वो .csv के फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। ठीक है, XLSX के फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होती। तो बिफोर इंपोर्टिंग योर डेटा डू चेक कि आपके पास कौन सी फॉर्मेट में मौजूद है डेटा। ठीक है, डॉट के बाद कौन सी फॉर्मेट आ रही है। अगर एक्सेल, इसका मतलब है कि एक्सेल की फाइल है। अगर .csv है तो डेट इज CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ठीक है, तो फिर आप अगर एक्सेल पे क्लिक करेंगे और CSV अपलोड करना चाहेंगे तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। आपने यहाँ पे ओपन करना है, और जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगी तो है, हाँ होगा, क्या हो गया, वो कह रहा है मुझे कि मेरी फाइल एम्प्टी है, पर मेरी फाइल तो एम्प्टी नहीं है। क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया कि वो मेरी फाइल इंपोर्ट नहीं कर रहा। आपके साथ भी हो सकता है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से मैंने डेटा कॉपी करा है, सिंपल सेलेक्ट करा है, मैंने सारा डेटा कॉपी करा है, और मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने वेरिएबल के ऊपर जाना है। ठीक है, और पेस्ट आपने इसको इस तरह करना है। कॉपी किया मैंने, यहाँ से एक्सेल पे जाऊंगी,
वेरिएबल पे जाऊंगी, लेफ्ट क्लिक करूंगी, इसका ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, और आपने इसको पेस्ट विद वेरिएबल नेम्स पे जाके पेस्ट करना है, डायरेक्ट पेस्ट नहीं कीजिएगा। डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो पहले वाले में आपकी हेडिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने लेफ्ट क्लिक करना है अपने माउस पे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट विद वेरिएबल नेम पे जाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, और हेडिंग्स जो है वो आपके पास इन वेरिएबल्स व्यू आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं फाइल। मेरी पता नहीं कि उसको फाइल रीड नहीं हो पाई, हो सकता है कि आपके पास भी ये इशू आए जब आप अपना मेरा वाला डेटा अपने पास इंपोर्ट करें। तो आप इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, जिस तरह मैंने कॉपी पेस्ट किया है, कि आपने यहाँ जाना है, क्लिक करना है, पहले वाले पे जाना है, राइट क्लिक करना है माउस पे, पेस्ट विद वेरिएबल्स नेम्स करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी वेरिएबल क्या होते हैं। एवरी कॉलम इन अवर एसपीएसएस इज कंसिडर्ड अ वेरिएबल। ठीक है, ये वाला कॉलम भी मेरा एक वेरिएबल है, ये वाला भी वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल भी है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। ठीक है, अब वेरिएबल व्यू में मैं जाऊंगी तो मैं अपने हर कॉलम को डिस्क्राइब करूंगी कि मेरा कॉलम क्या है, मेरे कॉलम में किस तरह का डेटा मौजूद है, मेरे कॉलम में क्या क्या चीजें मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको? इज देयर एनीथिंग जिसको डेटा एंट्री में प्रॉब्लम है? कुरतुल अनवर, अब अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेरा इशू ये है कि मैं जब उसको पेस्ट इनटू वेरिएबल व्यू कर रही हूँ तो मेरे पास वेरिएबल व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है राइट क्लिक करने से। वो उस पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जब मैं पेशेंट आईडी की वजह से राइट क्लिक करती हूँ तो ये मुझे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट, डिलीट रो, इंसर्ट कॉलम, ये वाले ऑप्शंस दे रहे हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने पहला वाला जो कॉलम है ना, इस पे क्लिक करेंगी। इस पे क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगी तो आपके पास आ रहे होंगे ऑप्शंस। ठीक है, जो आपका पहला बॉक्स है जो खाली होगा, ठीक है, यूजुअली क्योंकि आपका ये डेटा व्यू वुड बी एम्प्टी, राइट? तो लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, मेरा ये वाला एम्प्टी था। ठीक है, मैंने एम्प्टी बॉक्स पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है, माउस से। उसके बाद फिर मैंने इस पर राइट क्लिक करना है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेस्ट विद वेरिएबल नेम्स का। अब मैं इसको जब पेस्ट विद वेरिएबल नेम करूंगी तो ये दोबारा देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए ये, तो मैं इसको दोबारा सेट कर रही हूँ। बट आपने पहले इस पर क्लिक करेंगे, आपको ग्रे बॉक्स दिखेगा, उसके बाद आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट लेफ्ट क्लिक करने लग जाएंगी तो आपको कुछ इतना खास नहीं दिखेगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा ऑप्शन पेस्ट विद वेरिएबल नेम्स वाला ऑप्शन आएगा। पेस्ट विद वेरिएबल नेम्स करेंगी तभी आपके पास हेड वेरिएबल्स के नाम में पहला वाला रो आएगी। अगर आप डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये देखिए, जो मेरी हेडिंग्स हैं वो एज अ फर्स्ट रो आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट पेस्ट नहीं करते। ठीक है, फिर आप इसको मिटा बैक करते जाएं, फिर उसको ऊपर करेंगी, फिर वो टाइम लेगा। सही है, फिर आप समझ आ गई? अच्छा, दूसरी चीज, अगर किसी से वो चीज नहीं हो रही तो आप लोग दूसरा काम, एक और काम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो छोटा सा डेटा है तो इस पर हम कर सकते हैं। आपकी जो हेडिंग्स हैं, आपने वो कॉपी नहीं करनी है, आपने सिर्फ अपना डेटा कॉपी करना है। जो आपकी हेडर वाली रो है उसको एज इट इज रहने देना है, आपने अपना डेटा कॉपी करना है और उसको वहां पे पेस्ट कर देना है विदाउट वेरिएबल व्यू। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे जाके अपना वेरिएबल नेम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपना
अगर मुझे लग रहा है कि मुझे अपना वेरिएबल का नाम एडिट करना है तो मैं यहाँ पे जाके अपना वेरिएबल का नेम एडिट भी कर सकती हूँ। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। हाँ, सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी। बट बिफोर प्रोसीडिंग के हम वेरिएबल को डिस्क्राइब किस तरह करेंगे, ठीक है, हम बैक टू कुछ कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं। हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स मालूम करने हैं और वो ये है कि हम अपने डेटा के साथ कर क्या सकते हैं। ठीक है, डेटा एंटर हो गया हमारा। नाउ वी नीड टू नो व्हाट कैन वी डू विथ आवर डेटा। ठीक है, वट एवर डेटा हमारे पास आ गया था, हम अपने डेटा के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आवर मेजरमेंट स्केल। ठीक है, या फिर हम इसको इजी सवाल में ये भी कह सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डेटा वी हैव। व्हाट कैन वी डू विद आवर डेटा entirely entirely depend upon two things, कि हमारा डेटा क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये। द सेकेंड थिंग इज हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें एनालाइज किस एस्पेक्ट पे करना है। ठीक है, हमारी हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, तभी तो हम उसकी बेसिस पे हम डेटा एनालाइज कर होंगे ना। जो हमारे पास हाइपोथेसिस होगी, रिसर्च क्वेश्चन होगा, उसकी बेसिस पे हम अपना डेटा एनालाइज कर रहे होते हैं टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। तो हमारा आंसर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो हमें पता है, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन हमारा डिफाइंड होता है, हमें पता है कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है। फॉर दैट डेटा, फॉर एग्जांपल मैं इस डेटा की एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, तो इस डेटा में मैं ये कह सकती हूँ कि आई वांट टू सी इन माय डेटा, राइट। सपोज कि मैं इसको तरह कर दूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं इस डेटा की एग्जांपल लूँ, तो मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि हाउ मेनी मेल आर स्मोक मेल विद डिजीज आर स्मोकर्स। ठीक है, या हाउ मेनी डिजीज इज द डिजीज इज डिपेंडेंट अपॉन द स्मोकिंग स्टेटस और नॉट। या मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मेरा जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो स्मोकिंग पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, या ब्लड प्रेशर इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू द एज और द जेंडर। ठीक है, तो मैं ये चीज़ें देखना चाह रही हूँ। ये मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन हो गया, बैक ऑफ द माइंड मेरी हाइपोथेसिस हो गई, मैंने इसकी बेसिस पे हाइपोथेसिस बना ली। बट मैं अब मुझे अपना डेटा एनालाइज करना है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि मेरा डेटा क्या है, मेरे डेटा की मेजरमेंट स्केल क्या है, मेरा डेटा किस तरह मेजर हुआ हुआ है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन ऑन द स्टिंग SPSS categorize the measurement scales into three kind of scales। ठीक है, हमारे पास लेडर ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, मेजरमेंट के कुछ ऑर्डर्स होते हैं। क्या होता है, जो बेसिक कैटेगरी, इसको हम कहते हैं नॉमिनल डेटा। ठीक है, नॉमिनल डेटा हम आगे इस पे हम चारों लेवल्स पे बात करेंगे। द बेसिक कैटेगरी इज द नॉमिनल डेटा। उसके बाद हमारे पास थोड़ी और हायर कैटेगरी ऑफ डेटा आता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा। इसको हम कहते हैं कि मीनिंगफुल ऑर्डर में मौजूद है। देन वी हैव अ इंटरवल डेटा एंड द फोर्थ थिंग इज द रेशियो डेटा दैट हैव अ ट्रू जीरो वैल्यू या होल नंबर वैल्यू है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ रेशियो। ठीक है, हमारे पास एनीथिंग दैट कम्स इन नंबर फॉर्म इज कंसिडर्ड एज स्केल इन SPSS। ठीक है, तो SPSS के अंदर रेशियो एंड इंटरवल को एक ही कैटेगरी में कंपाइल किया गया होता है, दैट इज स्केल। ठीक है,
बाकी ऑर्डिनल डेटा के लिए और नॉमिनल के लिए दे हैव डिफरेंट कैटेगरीज फॉर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने डेटा को प्रॉपरली मेजरमेंट स्केल के हिसाब से लेबल नहीं करेंगे, ठीक है, तो आगे जाके आपको एनालिसिस में मसले आएंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने डेटा को सही से लेबल करें। और डेटा को सही से लेबल करने के लिए इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा की मेजरमेंट किस टाइप की है। आइदर इट इज नॉमिनल, आइदर इट इज ऑर्डिनल, आइदर इट इज इंटरवल और रेशियो। ठीक है, अगर हम ऑर्डिनल डेटा को नॉमिनल कैटेगराइज कर लें, लेट्स सपोज, गलती से, क्योंकि मुझे नहीं पता नॉमिनल ऑर्डिनल का डिफरेंस, तो कुछ ऐसी एनालिसिस जहाँ पे मुझे आगे जाके एनालिसिस करनी है वो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेबल योर डेटा करेक्टली। तो लेट्स सपोज फाउंडेशन नॉमिनल स्केल। नॉमिनल डेटा क्या होता है? नॉमिनल डेटा इज द बेसिक डेटा। ठीक है, अ, ये मोस्टली इसके जो आंसर्स हैं वो यस या नो में होते हैं। ठीक है, ठीक है। नॉमिनल डेटा इज, हम कह सकते हैं, जेंडर, डेमोग्राफिक्स को डिफाइन करने के लिए, जेंडर डिफाइन करने के लिए, ऑक्यूपेशन डिफाइन करने के लिए। लेट्स सपोज क्या ऑक्यूपेशन है, कौन सी हाईएस्ट डिग्री अर्न हुई हुई है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर नॉमिनल डेटा। ठीक है, डिजीज, अगर लेट्स सपोज किसी की डिजीज कंडीशन है तो वो भी नॉमिनल डेटा में आएगी। ठीक है, जहाँ कोई भी ऐसा डेटा जिसको हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं रख सकते, या मैं कहूँगी या ये, और इसको हम किसी ऑर्डर वे में नहीं रख सकते, या ऐसा नहीं है पहले 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 14, 14 से 15 एक ऑर्डर आ रहा है ना, तो वो वाला डेटा दैट कैन नॉट, दैट इज येस और नो, या डिफरेंट आंसर्स। फॉर एग्जांपल, मैंने चेक करना चाह रही हूँ पेशेंट के साथ क्या 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 मसले हैं, तो लेट्स सपोज एक पेशेंट के 4 सिम्टम्स हैं, एक के 5 सिम्टम्स हैं, एक के 6 सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास पेशेंट के ऑक्यूपेशन, हमारे पास पेशेंट्स हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास 100 पेशेंट्स आ रहे हैं क्लिनिक के अंदर। 100 पेशेंट्स सेम, सबकी सेम बीमारी तो नहीं होगी, हर बंदा एक डिफरेंट डिजीज के मसले के साथ आ रहा होगा। ठीक है, तो उसको भी हम इसमें उस डेटा को भी हम नॉमिनल स्केल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नॉमिनल के बाद द सेकंड थिंग इज ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, जो भी चीज रैंक्ड हो रही है, कोई भी डेटा जो रैंक में आ रहा है, वो हमारे पास बताएगा कि इट इज ऑर्डिनल डेटा। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट में भी बताया था, यूजुअली आप लोगों ने पब्लिकेशंस में देखा हुआ एज को कैटेगराइज किया हुआ होता है, तो वो फिर जब कैटेगोरिकल एजेस होती हैं दैट आर इन ऑर्डर। ठीक है, अगर ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं पता, आपको पता है कि यार ये चीज पहले हुई है, ये चीज बाद में हुई है, ये चीज उसके बाद में हो रही है, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फर्स्ट कितनी परसेंटेज पे आ रहा है, वो आपका कंटिन्यूस डेटा होगा, लेकिन सिर्फ जो फर्स्ट आ रहा है दैट इज योर ऑर्डिनल स्केल। कोई और यहाँ पे हमें ऑर्डिनल स्केल की एग्जांपल देना चाहेगा इन योर कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च? Educational degree, yes, that is an ordinal data. Very good. और कोई एग्जांपल? जी, Kurital and Anwar do have some question. जी, Kurital and
Age is the ordinal scale. Age dependent strongly, बिल्कुल डॉक्टर जेबा एग्जैक्टली जो हमारे पास एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री वाली कंडीशंस होती हैं, that can also be considered as an ordinal scale. Very good. Satisfaction level, yes. ठीक है, these can be considered as an ordinal data. अब हमारे पास नेक्स्ट 2 स्टेप्स है हमारी लेटर के अंदर। एक है हमारे पास इंटरवल डेटा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है रेशियो डेटा जिसको हम कहते हैं ट्रू जीरो, जो हमारे पास डेसिमल में वैल्यू नहीं, ठीक है। हमारे पास दोनों डेटा आइदर that have some value continuous level scale होगा, ठीक है, that is measured in the interval or in ratios between your data points, ठीक है। ये जानना हमारे लिए इससे जरूरी होता है कि हमारा डेटा इंटरवल में था या रेशियो में था फॉर द एडवांस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। जब हम रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे होते हैं, बहुत सारा एडवांस एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो अगर हमें पता हो कि हमारा कंटिन्यूस डेटा रेशियो में है या इंटरवल फॉर्मेट में है, तो इट इज इजी टू एनालाइज दैट, ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं इंटरवल का मतलब क्या है। इंटरवल स्केल में हमारे पास जो भी डेटा होगा उनके बीच में डिफाइंड और इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है, और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज मीनिंगफुल एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस द एंटायर स्केल। इसकी एग्जांपल है कि डिफरेंस बिटवीन 150 ml एंड 100 ml इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 80 ml एंड 30 ml, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 50 ml है, ठीक है। तो जितना भी हमारे पास डेटा मौजूद होता है इंटरवल स्केल में वो डिफाइंड होता है और उसका एक इक्वल डिस्टेंस हो रहा होगा, ठीक है। हम इसको स्केल ही के तौर पे इसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे होते हैं। एंड देन वी हैव दिस थिंग, ठीक है। एंड देन वी हैव रेशियो स्केल, ठीक है। रेशियो स्केल इज बेसिकली जहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो रही होती है, जैसे कि हमारा एज, बीएमआई, ये सब हमारे पास रेशियोज में अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर जेबा का कुछ क्वेश्चन है। डॉक्टर जेबा, आई विल टेक योर क्वेश्चन आफ्टर कंक्लूडिंग दिस पार्ट, ठीक है। तो यूजुअली स्टेट्स में स्टेटिस्टिकली द मेन थिंग इज जो चीजें इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं दैट इज रेशियो स्केल, ठीक है। रेशियो स्केल में हमारे पास बीएमआई आ गया, हाइट आ गया, और एज, these all comes in the scale value, the ratio scale value. But now the question is where do our Likert like scales fit? ये कहाँ पे आते हैं? अभी मैंने कहा कि ऑर्डिनल स्केल में आ जाते हैं, बट एक और तरीका भी होता है इनको एनालाइज करने का कि हम इनको एज अ रेशियो क्लेम करें, ठीक है। आप लोग, मुझे नहीं पता इफ समवन इज फ्रॉम पब्लिक हेल्थ साइंस या फिर सोशल साइंस से बिलोंग करता है, तो आप लोगों ने पेपर में देखा होगा यूजुअली स्केल्स आर डिफाइंड एज इट इज, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इनको 1 को 1 ही डिफाइन किया गया, 2 को 2 किया, ठीक है, और इनको इसी तरह एनालाइज करके इनकी इसको इस तरह इंटरप्रेट किया जा रहा होता है, ठीक है। तो हम इसको लिकर्ट स्केल को एज अ ट्रू रेशियो स्केल देख रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि स्केल है ना कि अब जो बंदा कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड है उसको 1 स्कोर दिया हुआ है, जिसका 7 है उसको 7 दिया हुआ है, तो नंबर तो आपने ऑलरेडी उसको दिए हुए हैं ना, ठीक है। आप उसको अपने हिसाब से कैटेगराइज नहीं करी, यू आर ऑलरेडी आपने उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल को स्केल कर दिया है। तो जब आपने ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन लेवल को स्केल कर दिया है तो वो हमारे पास ऑर्डिनल डेटा में मौजूद
नहीं होगा, उसको हम स्केल में ही फिट करेंगे। The next is ratio scale. व्हाट मैटर मोस्ट इन प्रैक्टिस, हमारी प्रैक्टिस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें डेटा पता हो हमारा, और डेटा में हमें पता हो कि हमारा डेटा किस टाइप का है। ठीक है, अगर हमारे पास कैटेगोरिक यूजुअली कैटेगोरिकल डेटास आर इन टू काइंड ऑफ स्केल्स में मौजूद होते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। और जहाँ पास कंटिन्यूस स्केल डेटा होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। कंटिन्यूस डेटा दो स्केल्स में मौजूद होते हैं, आइदर दे आर इन इंटरवल स्केल और आइदर दे आर इन रेशियो स्केल। ठीक है, तो नाउ फॉर द थिंग इज, अच्छा हम देख लेते हैं कि क्या फर्क है तीनों चीजों का। नॉमिनल की कैटेगरी होती है बिल्कुल, कैटेगोरिकल डेटा है। ऑर्डिनल की कैटेगरी होती है। इंटरवल को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, रेशियो डेटा को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर, नॉमिनल डेटा ऑर्डर में होता है नहीं होता, हमें नहीं पता मेल है फीमेल, अब मुझे क्या पता मेल बड़ा है फीमेल छोटा है, तो मेल और फीमेल को मैं किसी ऑर्डर में नहीं ला सकती। ठीक है, ऑर्डिनल डेटास आर इन द ऑर्डर, इंटरवल डेटास भी ऑर्डर में होते हैं, हाइट्स भी ऑर्डर में आ जाती हैं। लेट सपोज किसी की 12 है, 14 है, 15 है, मैंने उसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ है तो वो ऑर्डर में ही आ जाती है। ठीक है, इक्वल इंटरवल किस किस के होते हैं, बस इंटरवल और रेशियो डेटा के इंटरवल्स हैं। हम कह सकते हैं कि these could have equal intervals, not in all scenarios। ठीक है, रेशियो डेटा का ट्रू जीरो होता है, मतलब होल नंबर वाली वैल्यू होगी। एग्जाम्पल लिखी हुई यहाँ पे सबकी, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और आप इनका क्या क्या चीजें मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉमिनल डेटा होता है, लेट्स सपोज मेल एंड फीमेल, तो मेल एंड फीमेल का मीन मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पे हम हमारे पास मोड मालूम करते हैं या डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। जो एन लिखा हुआ होता है एसपी डिफरेंट पेपर्स के अंदर, पब्लिकेशंस के अंदर, एन कैपिटल एन, दैट टेल यू द काउंट ऑफ द पर्सन, नंबर ऑफ द पर्सन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्सन, तो हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, काउंट मालूम कर सकते हैं। हम नॉमिनल डेटा का मीन मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्डिनल डेटा में की एनालिसिस हम किस तरह कर सकते हैं, ये हम उसका मीडियन मालूम करते हैं। क्या मालूम करना है हम इसका मीडियन। एंड देन वी हैव इंटरवल डेटा, इंटरवल डेटा का फिर हम मीन मालूम करते हैं, और रेशियोज डेटा को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसके डिफरेंट रेशियोज मालूम कर सकते हैं, मीन मालूम कर सकते हैं। दीज ऑपरेशंस आर अलाउड इन एसपीएसएस। ठीक है, आपका डेटा किस स्टेप पे है, अभी हमें सिर्फ तीन चीजों पे फोकस करना है, दैट इज कि हमारा डेटा नॉमिनल है, ऑर्डिनल है या फिर स्केल है। ठीक है, अभी हम इंटरवल और रेशियो पे नहीं जा रहे कि कौन सा स्केल है, उसको हम फॉर टाइम बीइंग वी आर कीपिंग इट ऑन साइड। ठीक है, अभी हमने फोकस करना है कि हमारा डेटा नॉमिनल है या फिर ऑर्डिनल है। ठीक है, और उसकी बेसिस पे हमने अपने डेटा की वेरिएबल को डिफाइन करना है एसपीएसएस पे जाके। तो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन माय एसपीएसएस फाइल एंड आई होप सो कि आकाशा अगर आप माइक ऑन कर सकती हैं इनका, बिकॉज नाउ दे आर गोइंग टू आंसर मी। अच्छा, अच्छा अब आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगी। मेरे पास ये डेटा व्यू है और मेरा ये वेरिएबल व्यू है। ठीक है, मेरी फर्स्ट थिंग इज माय पेशेंट आईडी। अब ये मेरा कौन सा व्यू, मैंने यहाँ से जाके डेसिमल सबके टू किए। ठीक है, अब पेशेंट आईडी की टाइप क्या है, मतलब किस तरह मेरा डेटा मुझे गिवन है। अब वेरिएबल की टाइप पे हम जाएंगे ना, हमें पता चल रहा है कि हमारा डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में मौजूद है, कॉमा की फॉर्म में है, डॉट लिखा हुआ है, कोई साइंटिफिक नोटेशन है, डेट की फॉर्म है, डॉलर की फॉर्म है, कोई करेंसी है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ABCDEFG कोई भी टेक्सचुअल चीज लिखी होगी। ठीक है, नेम लिखा हुआ हो, मतलब कोई भी चीज जिसमें अल्फाबेट्स होंगे, नेम होगा। ठीक है,
या फिर रिस्ट्रिक्टेड न्यूमेरिक है। तो ये चीज आपको क्रॉस चेक करनी होती है। यूजुअली टाइप इज डिफाइंड ऑटोमेटिकली बाय एसपीएस बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू हैव। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो न्यूमेरिक में गिवन है और वो डेट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके उसको डेट कर सकते हैं, ठीक है, पर मेरे पास डेट नहीं है। पेशेंट आईडी मेरे पास 1234 लिखी हुई है, न्यूमेरिक फॉर्म में है, ठीक है, तो मैं इसको न्यूमेरिक ही रहने दूंगी। विथ हम इसको नहीं छेड़ते। डेसिमल क्योंकि 1 2 मेरे पास कोई डेसिमल वाली वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको 0 ही कंसिडर कर दूं, ठीक है। मेरे पास किसी में भी डेसिमल वाली वैल्यू नहीं है, मैं सबको ही 0 कर रही हूँ, ठीक है। बट अगर आपका कोई डेटा डेसिमल में मौजूद है, तो आप पर यहाँ पे जाके जो भी डिजिट डेसिमल्स कितने डिजिट पे आपको डेसिमल रखना है, 2 डेसिमल्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रखने हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रखने हैं, वो आप यहाँ पे जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एरो शो हो रहा होगा 1 2, ठीक है। तो मुझे मैं नीचे क्लिक करूंगी तो मेरा नंबर नीचे जाता जाएगा, ऊपर करूंगी तो मेरा नंबर ऊपर जाता जाएगा। तो मुझे 0 डेसिमल रखना है। आई डोंट वांट माय डेसिमल। यूजुअली गुड प्रैक्टिस होती है कि आप डेसिमल के बाद 2 डेसिमल रखें, मतलब 2 डिजिट्स रखें, ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, मेरे पास इसने क्या करा है, मेरे वेरिएबल नेम में से देख के ही खुद ही लेबल कर दिया। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लूँ। मेरे पास पेशेंट आईडी अच्छे तरीके से लिखी हुई आ रही हो, मेरे पास ये हैश हैश ना आ रहा हो, तो मैं इसको अपने हिसाब से एडिट कर लूंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सबको? एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन है प्लीज। जी पूछे। हाँ, मुझे मालूम करना है, जो हमने लेबल किया है इसको हम अपना कोड भी दे सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का कोड हो? बिल्कुल दे सकते। जैसे कि मैं आपको ये गाइड कर, माय एडवाइस वुड बी कि आप अपनी लेबल वो दें जिस लेबल से आप चाहते हैं कि आपके पेपर में चीजें मौजूद हो, ठीक है। जी सर, वट गॉट इट, एवर थैंक यू। जो भी हम अपने पास जो पैरामीटर्स रिजल्ट में हमारे शो पास, होगा, रिजल्ट पे जो आईडी शो होगा वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपके रिजल्ट में ही लेबल्स शो होंगे, ठीक है। तो आप अपने रिजल्ट के टेबल पे देख लें कि आप कौन से पैरामीटर डिफाइन कर रही हैं, और आप चाह रही हैं कि आपके रिजल्ट में ये चीज आए, तो आप वो चीज यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर आप नहीं भी करेंगी तो फिर आपको बाद में जाके फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, तो इट्स बेटर कि आप एक ही दफा में फॉर्मेटिंग कर लें, ठीक है। चलें, अच्छा अब हम जाते हैं, हम वैल्यूज पे नहीं जा रहे, सबसे पहले हम स्केल पे जा रहे हैं। हमने भी मेजर पढ़ा है, हम मेजर पढ़ते हैं। अब पेशेंट आईडी मेरा नंबर है तो स्केल है, ठीक है। आप लोग एक चीज मुझे बताएं देख के जरा कि यहाँ पे खुद ब खुद चीजें लिखी हुई हैं प्रॉपरली, मैंने इसको कोई एडिट नहीं करा है, आप लोगों के सामने खोली चीज। तो अब एसपीएसएस ऑटोमेटिकली आपके डेटा को देख के मेजर कर देता है, लेकिन कभी कभी नॉमिनल एंड ऑर्डिनल का उसको डिफरेंस नहीं पता चलता, ठीक है। मेरे पास कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ कि ऑर्डर में है मेरे पास कोई डेटा जो मैं कहूँ ऑर्डर ऑर्डिनल है? नहीं, इसमें से तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। मैम हम ऐड कर लेते हैं, हम एक ऐड कर लेते हैं ऑर्डिनल डेटा अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मैम वेरिएबल एज ऐड कर, ऑर्डिनल नहीं होगी? एज तो की जब हम कैटेगरी बनाएंगे ना, तब ठीक है, होगी। वो ऑर्डिनल होगी। अभी मैंने एज को कैटेगराइज नहीं किया हुआ, मेरे पास सिंपल एजेस हैं, ठीक है। मैम लेकिन सिंपल एजेस भी ऑर्डिनल नहीं होती। नहीं, ये स्केल है, ये कंटिन्यूस डेटा, ठीक है, ये और मुझे ये कंटिन्यूस डेटा। समझ नहीं आ रही कि पेशेंट आईडी कैसे स्केल होगा। अच्छा, पेशेंट आईडी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा है, तो इसलिए स्केल है। यूजुअली हम पेशेंट आईडी को कहीं पे भी एनालाइज नहीं करते, ये सब हमारी नॉलेज के लिए होता है, ताकि हमें पता चले। पेशेंट आईडी बेसिकली हमें हमारा केस नंबर बता रहा होता है, ठीक है।
तो ये एनालाइज तो कहीं पे भी नहीं हो रहा होता, ठीक है। और क्योंकि कंटिन्यूस नंबर्स है इसलिए, ठीक है, और क्योंकि कंटिन्यूस नंबर पे लिखे हुए मेरे पास पेशेंट आईडी, इसीलिए ये स्केल है फॉर माय डेटा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पेशेंट आईडी सर लिखी हुई है 41, पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3, ठीक है, तो उसको फिर आप ब्लैंक लीव करना है, क्योंकि वो हमारे पास कहीं पे भी एनालिसिस पे पेशेंट आईडी वाला वेरिएबल यूज नहीं हो रहा होता। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर अस। अच्छा, अब हम यहाँ पे काम करेंगे मैम एक ऑर्डिनल डेटा क्रिएट करेंगे। मैम अगर आज का कंप्लीट हो गया लेक्चर तो क्वेश्चन करके हम मीटिंग एंड कर सकते हैं, बिकॉज मैनी पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि वो बिजी हैं, और आप एक फिक्स टाइमिंग बता दें, मोस्टली एक आवर की होती है तो। चलें, ठीक है। अच्छा, मेरी बात हुई थी, हम जो है वो 9:15 से 10:15 तक की क्लास रखेंगे, ठीक है। हाँ, टाइम हो गया है। आज हम यहाँ तक एंड करते हैं, ठीक है। आप इसी डेटा को प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने पास कीजिएगा, इससे जो भी रिलेटेड कोई किसी को क्वेश्चन है आज की क्लास में से किसी चीज पे, तो वो कर सकता है। नो, एसपीएसएस को ना हम कंटिन्यूस या कैटेगोरिकल नहीं बताते, उसको समझ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो देयर इज नो ऑप्शन फॉर कंटिन्यूस और कैटेगोरिकल, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हमारा डेटा किस टाइप का है। Okay, ma'am, thank you so much for the lecture. My question is that we do not need to save all the data, etc. Like it will be automatically saved. अगर आप यहाँ से क्लोज करेंगी ना, मैं करके दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे क्लोज करी ना, मुझे ऑप्शन दे रहा है ये सेव करने का, ठीक है। तो मैं अपने डेटा सेट को सेव करूंगी, बिल्कुल करूंगी, जो मैंने चेंजेस करी हैं, मैं इसमें चीज करी है ना, मैं इसको सेव करूंगी। यस, आई विल सेव इट, ठीक है। अच्छा, जो डेटा सेट है आप देख सकते हैं, इट इज सेव एज डॉट SAV, क्योंकि मैंने आगे भी इसी डेटा सेट पे काम करना है। क्या कर रही हो उधर? पेशाब है, उसे जा रही हो उधर ही? नहीं, मेरे ऊपर किया हुआ है, उधर ही चीजें फेंके जा रही है। ये कोई अपना माइक बंद कर ले प्लीज। ठीक है, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर फ्रॉम टुमारोज क्लास, ठीक है। कल की क्लास में हम थोड़ी सी चीजें SPSS पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे कि हम अपने वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ फिर हम कल की क्लास में उस चीज़ को देखेंगे कि हमने अपना डेटा किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है, कंप्यूट करना है, और फिर उसकी एनालिस उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसीजर्स पे जाएंगे।